हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एरियाज, टॉपिक्स एंड प्लानिंग विच यू शुड बी हैविंग इन योर माइंड सो दैट यू कैन गेट एवरी डे समथिंग ग्रेट। कुछ बातें मैं पहले ही बता दूं। इन नन ऑफ आवर एक्सप्लेनेशंस एंड नन ऑफ आवर डिस्कशंस वी विल बी रिपीटिंग द सेम थिंग। हम कोई सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे। सेकेंडली, यू आर सपोज टू मेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग और स्मॉल स्मॉल आप नोट्स साथ में कॉपी रख के बना लीजिए। And number three, you must also keep your atlas side by side. Or you can always open a tab on the side and you can start with your own points. आप कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए। पांचवी बात, that we are having a very broad perspective and we are bringing everything in such a manner that where you learn and try to integrate your own thinking rather than just merely noting down the points. उसका कोई खास लाभ नहीं है। लाभ है लेकिन खास लाभ नहीं है। लाभ ये है कि आपको चैन आएगा और खास लाभ ये नहीं है कि आपका पेपर उससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। So we have to be smart and simple at the same time. That is what our strategy had been and that is what our strategy will be. So for any doubts, any kind of issues or any kind of discussion, you can always write back to me, and please do join us for our customized programs and series which is prepared according to each candidate's ability to understand and to work in the right direction. So please do like and share and subscribe our channel, and this is a kind of a base without which you cannot think of jumping ahead the queue because masala और material तो फैला हुआ है। कितना काम आएगा ये तो वक्त बताएगा। We are creating a benchmark for you so that you get the best. So coming to the points, what we can take up today is we have to see that what are the relevant areas which will help us in both general studies, also in optional papers, and I'm talking about both prelims and the mains examination. So you have to be very smart and also we have to be very unique. For example, in general studies paper 3 we talk about defense, we talk about strategy, and in general studies paper 4 we need certain case studies. So military engineering services, सबको नाम शायद पता होगा लेकिन उसका रोल अगर आप लेके आते हैं then it becomes a very different ball game because it is providing quality engineering support to Army, Navy, Air Force, Coast Guard, DRDO, Kendriya Vidyalaya and several organizations. And its annual workload is 30,000 crores. आप सोचिए 30,000 crores. And it is also updating itself with the modern technology. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, सुगम्य भारत हो, डिजिटल इंडिया हो, ग्रीन बिल्डिंग हो, ये सारे वर्ड्स आपको भी याद होने चाहिए। एक बार फट से एक सेकंड से पहले आपके माइंड में सारे आ जाने चाहिए एंड यू शुड बी नोटिंग देम डाउन समवेयर एंड ऑल्सो ट्राई टू नो अबाउट देम एटलीस्ट टू लाइन्स इन ए स्मार्ट वे। सो एमईएस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है और कहना चाहिए भारत की ग्रोथ का इंटीग्रल पार्ट है। मूविंग सिमिलरली रेरा. So you should know what is the full form of RERA if I ask you. That can be asked in your interview also whenever you go over there. RERA, and you should be able to speak it very simply. Real State Regulatory Authority. ऐसा करके मान लो आपने बोला. तो digitization is also there in RERA, and secondly it has been streamlining assets and also it is promoting right infrastructure development. ऐसा करके आप सोच सकते हैं, ऐसा करके आप help कर सकते हैं अपनी understanding का. Then moving forward with key ideas, because this is an advertisement with respect to RERA. This is an auspicious time. We always look forward that more and more investment, more and more growth takes place. Coming further, Maharaja Agrasen. So Maharaja Agrasen is a very renowned, great and sagacious personality and also figure. He is the pioneer of socialism. What is written here? Please read. Pioneer of socialism and sculptor of unique society who blessed humanity with the mantra of Ek Rupiya, Ek Eat. So that means India inspires itself from the real personalities, grassroots people and also those who have transformed the society. आप इनके एग्जाम्पल्स भी अगर इससे में एथिक्स में लेके आते हैं या इवन इफ यू ब्रिंग देम इनटू योर डेली लाइफ अंडरस्टैंडिंग देन इट इज आल्सो गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. हर चीज की स्टोरी पता होना जरूरी नहीं है लेकिन पता भी हो तो कोई बुराई नहीं है बिकॉज दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल ethos. Because as you can read, Maharaja Agrasen ji was an epitome of social harmony and a true karma yogi.
He worked towards human welfare, philanthropy, and upliftment of the underprivileged will always inspire us. That is being said by Modi sir. This is just a general news, but I just want to tell you that QR system will be used for the BJP workers ahead of the MCD polls. So can you see, can you sense a change? QR code system. So similarly, for so many public purposes, these things can be done and being done also. That is why I have highlighted this for you. This is part of understanding of political science, the public administration, even sociology, apart from anthropology optional. So dragonfly and damsfly, all newspapers are they are talking about it. But what is most important is that you have to understand that when the temperature is high and rainfall is low, there is little water in the river and floodplain and wetlands they are वो shrink हो जाते हैं. उस टाइम पर जो nymph 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 which is one of the stages of the life cycle of dragonfly वो water के ऊपर रहता है long time के लिए और mosquitoes को वो खा जाते हैं mosquito larva को. So when the temperature is high there is less rainfall and less water. उससे क्या होता है nymph जल्दी adult में grow हो जाता है क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज के लाइफ स्पैन बहुत छोटे होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं. लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मेटामॉर्फोसिस फास्ट होगा, विंग का साइज भी छोटा हो जाएगा. विंग का साइज छोटा होगा तो डिस्पर्सल भी रिड्यूस हो जाएगा, डिस्पर्सल रिड्यूस हो जाएगा तो मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी, मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी तो उनकी अडल्ट मॉस्किटो को खाने की क्षमता भी कम हो जाएगी. तो इसीलिए सिटी दिल्ली फॉर एग्जांपल इफ इट इज डेफिसिट इन रेनफॉल तो उसका डायरेक्ट असर आपके ड्रैगन फ्लाइज और डैम्सेलफीज पर भी होगा. डैम्सेल फ्लाइज and dragonflies they are very key indicator. They are an indicator of the environment. They are indicator of the pollution because उनके वैसे तो pollution से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता but then they are the indicator. That's what I'm saying. Okay, moving further, taking up more important ideas from the examination perspective, then we can say that Honorable Prime Minister Sir had said that a task force should be there. A task force should be there when people can see cheetahs. See, this is an example. How he is bringing innovative ideas, how he is bringing doable things. We are not saying task force should be there for everyone, but the task force should be there for such important measures. And it is called collective thinking. It is called collective, promotion and collective understanding of taking masses along. Similarly, there is a case study over here of Cheetah Mitra Ramesh Sikarwar या रमेश सिकरवर. रमेश सिकरवर जो है पहले डकैत थे लेकिन आज वो चीता मित्र हैं. कूनों में उनका कहना है जो भी कूनों में चीता को अटैक करने आएगा, जो भी पोचिंग करेगा, पहले उन्हें मुझे फेस करना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ वी कैन यूज सच रोल मॉडल्स. And they are not just here, they are in Sholapur model of prohibition which we have read. They are also in terms of anti liquor policy in Bihar. वहाँ भी ऐसे बहुत लोग होंगे. एंटी डाउरी वाले भी बहुत ऐसे होंगे, एंटी चाइल्ड मैरिज वाले ऐसे बहुत होंगे, एंटी आई शुड से वुमेन जो वर्क उसके भी बहुत होंगे. एंड पॉजिटिव तरीके से देखें तो फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले बहुत होंगे. सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस फॉर दीज थिंग्स, सो वी मस्ट प्रमोट इट. In the coming examination next year, there may be questions on how diaspora is linked with Indian politics. भारत की जो डायस्पोरा है, भारत जो भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, उनका हमारी राजनीति पर क्या फर्क पड़ता है या हमारी राजनीति से वो कैसे प्रेरित हैं. How they are linked, how they are impacted by what is happening in India and how they are bringing their ideas over there. Here the example is of Khalistan referendum. So Khalistan referendum, suppose it is taking place in Canada by a group of Indians or person of Indian origin who do not want to be seen aligning with India or Indian heritage in indirect manner. They are proud of being Indians, but they do not want to talk about the BJP or Congress or any party over here. But they want to carry on certain agendas over there. For example, this Khalistan referendum. So Khalistan referendum का इंडिया में तो कोई उस तरीके से अगर आप पंजाब की बात करें, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, पीपल आर एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक एंड नेशनलिस्टिक. यहाँ कोई डायरेक्ट रोल नहीं है एक्सेप्ट डिविजिव एंड सेशनिस्ट पॉलिटिक्स. बट ओवर देयर इट इज बीइंग हैपनिंग इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. इट इज बीइंग हैपनिंग इन द नेम ऑफ कि भाई हमें वो चाहिए, इट इज आवर ड्रीम एंड व्हाट इज रॉन्ग विद इट. तो क्या स्टैंड लेगा डायस्पोरा, whether it is hate,
speeches, whether it is the racial tension. हमें recently we discussed about what happened in the UK. Certain anti-social elements belonging to certain community, they went on to damage and hurt and also attack a particular community. Here it was Hindu community. So ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा. This is what you can think of, because इसके अंदर भी आपको आपको इसके अंदर भी the diplomatic relation between the both countries, then awareness programs and then apart from it you can say what is the role of consulate Indian embassy over there. So this is very very important for diaspora politics. Apart from the political parties, उनके foreign cell हैं, वो उसको कैसे mobilize करते हैं, ये भी बहुत important है. सोशल ऑडिट प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ चुका है. मेंस में भी क्वेश्चन आता है सोशल ऑडिट के ऊपर. यू हैव टू फाइंड आउट सोशल ऑडिट इज एडवाइजरी इन नेचर, इट इज स्टैट्यूटरी इन नेचर, और इट इज हाउ इट इज मैंडेटेड. सोशल ऑडिट must be submitted by all the states within the time frame. Social audit brings glaring deficiencies. Social audit helps in bringing more efficiency. Social audit helps also to bring modern ideas and also how to use the funds in a proper manner. Also, it helps in getting the first-hand feedback from the communities right at the ग्राम सभा लेवल. ग्राम सभा लेवल के अंदर एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि भाई आखिर हो क्या रहा था. दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबको टाइम से करना चाहिए. सेकेंडली इसमें पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिए. सेकेंडली सोशल ऑडिट के अंदर सोशोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड ऑल्सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर political science and international relations in an indirect manner when you talk about politics or political science. So audit is it is not mandatory, that is why states have not carried it out. तो आप सोचिए कि कैसे स्टेट्स को मोटिवेट किया जाए या जनता को एक खबर पहुंचाई जाए कि आपके काम की चीज है लेकिन ये हो नहीं रही. आप सोचिए इसके लिए क्या कीवर्ड यूज करेंगे. इसके लिए आरटीआई यूज करेंगे, कोई और सोशल टूल यूज करेंगे या पॉलिटिकल टूल यूज करेंगे. आप फिर करेंगे क्या. ये तो हो रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं है. आबा नेरी फेस्टिवल दौसा, इट्स अ फेस्टिवल, और यू कैन से दौसा में है. यहाँ पर स्टेप वेल दिखाया गया है. प्लीज हैव ए लुक एट द स्टेप वेल. यू हैव टू थिंक ऑफ, क्या इंडिया का कोई ऐसा स्टेप वेल आप जानते हो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है. जाके चेक कीजिए. एनी स्टेप वेल इन इंडिया विच इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. स्टेप वेल रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है क्या. स्टेप वेल आपका एंशियंट वाटर प्रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है कि ये आपको सोचना और पता होना चाहिए. डेली व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर स्टडीज एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लाइक सिविल सर्विसेज, आपको सोचना पड़ेगा. आपके नोट्स कभी काम नहीं आएंगे, काम आएगी आपकी मेमोरी. यहाँ लिखा भी हुआ है, अ ट्रॉफी कैरीज डस्ट, अ मेमोरीज लास्ट फॉर एवर. सो जब आप पढ़ते हैं तो जान लगाकर पढ़ दीजिए, सबको पीछे छोड़ देंगे, कोई भी आपको टक्कर नहीं दे पाएगा. सो दैट इज हाउ व्हेन वी आर टॉकिंग दैट मीटिंग वाज देयर बाय people of certain community with RSS chief. There is an article over here. So what they are writing, strong belief in dialogue, concerned about situation of Muslims behind the initiative. So the question arises, were they representing the community? Maybe, may not be, because nobody was elected or nobody was elected by the community, but they claim that they are also part of the community. I have also met S.Y. Qureshi sir when he launched his book election, as a former Indian election commissioner. When I met him, he was working upon, I think, believe the same book, author of he is author of the book Undocumented Wonder, The Making of the Great Indian Election. ये शायद किताब बाद में आई है. इससे पहले उन्होंने एक किताब चांदनी चौक पर भी लिखी थी पुरानी दिल्ली पे, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली में ही. It was wonderful to meet Qureshi sir and to learn so many ideas from him. एक टर्म हम पॉलिटिकल साइंस आईआर में यूज करते हैं या हमें आती है जनरल स्टडीज पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में भी, कोएर्सिव मोबिलाइजेशन. सो कोएर्सिव मोबिलाइजेशन इंडिया में है नहीं है. नक्सलाइट्स लेकिन कोएर्सिव मोबिलाइजेशन करते हैं तो आपको इंसर्जेंसी के केस में ये वर्ड यूज करना चाहिए. देन सेकेंडली, इफ रशिया इज डूइंग कोएर्सिव मोबिलाइजेशन, क्या रशियंस उसके लिए बिल्कुल वॉलंटरी रेडी हैं, नहीं रेडी हैं. क्या वो पर्सनली सोच रहे हैं कि पर्सन सेक्रीफाइस करके दिस वॉर कैन बी वन? प्रोबेबली दे आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट. डू यू हैव द रियल मोटिवेशन टू फाइट? मे नॉट बी देयर. सो there is a difference between doing things in a voluntary basis and with a zeal and inspiration, and there is a difference between thing doing forcefully. वो पढ़ाई पे भी लागू होता है और लड़ाई पे भी लागू होता है. तो आप सोचिए, आपकी पढ़ाई या आपकी लड़ाई, दोनों में से असली क्या है. In terms of general studies paper 2, when we talk about the right to carry out protests, especially in political science and international relations also, this is one of the important and topics in public administration also. This is one of the important themes, that do Indians have
टू पॉलिटिकली प्रोटेस्ट इन ए पीसफुल मैनर। लेकिन पहले बात तो ये है ना कि गलियां ही नहीं रही, आप प्रोटेस्ट करोगे कहाँ? यू कैन बी चार्ज्ड, you can be arrested also if you are violating section 144 which prohibits assembly of five or more than five people, और उसके अलावा चाहे आपने कुछ भी ना किया हो, बिकॉज न्यू जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 आया है उसके हिसाब से पुलिसमैन आपके बायोमेट्रिक्स और आपके बाकी डिटेल्स भी लेंगे। तो क्वेश्चन इज दैट जब वो लेंगे उसके बाद जब आप छूट जाते हो या आपका केस ही नहीं बनता तो उसके बाद आप मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करके उसको हटा सकते हो। तो क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये इतनी आसानी से हो पाएगा? क्वेश्चन अराइजेस क्या इन एथिक्स केस स्टडी जब आप कोई ऐसी बात करते हैं कि कैसे आप भीड़ को रोकेंगे या पुलिस एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ऐसा कर सकती है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? रोहित वेमुला की जब सुसाइड हुई थी देयर वाज अ लॉन्ग प्रोटेस्ट, किसान मार्च हुआ था 2018 में, वो भी लॉन्ग था, एंटी सीसीए, एंटी सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट भी हुए थे। लेकिन क्या अब ऐसा हो पाएगा, आगे हो पाएगा? दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, कि पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आपने जगह बना दी, बिकॉज स्ट्रीट protest or peacefully protesting is the fundamental right in democracy. Our constitution guarantees it, and Supreme Court has upheld it also more than once. So, but how to literally carry it out? ये बात वो पूछ रहे हैं, ये बात आर्टिकल में बोली जा रही है। In general studies paper 3 and also in terms of economics, I am here just talking about कि इंडियन करेंसी जो वीक हो गई है, द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट कि वीक जरूर हुई है लेकिन हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल वर्स नहीं हुए हैं। आप ये देखिए जो भी मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं वर्ल्ड के, वेदर इट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड, वेदर इट इज बैंक ऑफ जापान, उन्होंने सब ने डेवलप्ड इकोनॉमीज जो भी सब ने जो है वो ज्यादा वीक हुई हैं रादर देन इमर्जिंग मार्केट। हम इमर्जिंग मार्केट में आते हैं, यूरो नीचे हो गया, येन नीचे हो गया, पाउंड नीचे हो गया, और सबके वहां पे टर्मोइल बहुत ज्यादा है करेंसीज में रादर देन हमारे केस में। तो इस शब्द को हम क्या कहते हैं जब हम कहेंगे टर्मोइल, यानी जब वो डाउन हुई तो हमने कहा वॉलेटाइल बैकग्राउंड, इसको क्या कहेंगे? वॉलेटाइल बैकग्राउंड। हमारे यहाँ आरबीआई इज प्रोटेक्टिंग द करेंसी फ्रॉम क्रॉसिंग द साइकोलॉजिकल बैरियर मार्क, 80 वाला पार कर गया। लेकिन अगर मान लो हमने पार करने भी दिया तो क्या उससे हमारी इकोनॉमी वाकई डामाडोल हो सकती है? क्या उससे वाकई बहुत खतरा हो सकता है? सो आरबीआई माइट अलाउ द रूपी टू डेप्रिशिएट कुछ पीरियड के लिए, लेकिन करेंसी थोड़े टाइम बाद अपने आप को दोबारा से वो अपने आप को पोजीशन करेक्ट कर लेगी। दैट इज वाई रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो प्रीलिम्स में भी इस बार क्वेश्चन आया था, क्योंकि इट इज ओवर वैल्यूड, हमारी जो करेंसी है वो ओवर वैल्यूड है जब आप उसको देखते हो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मामले में और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मामले में। सो द कॉन्सेप्ट इज ओवर हियर, वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम। आरबीआई ऑलरेडी मोर देन 75 बिलियन यूज कर चुका है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कि रुपी जो है नीचे ना जाए और ज्यादा। हमारा इंपोर्ट कवर भी जो है रिड्यूस हो गया है उसकी वजह से। तो एक ट्रेड ऑफ तो होता ही होता है, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इट, दैट इज व्हाट द आर्टिकल आल्सो आर्ग्यूज। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारी पोजीशन फिर भी स्ट्रांग है, हमारी पोजीशन फिर भी इवन आफ्टर द यूक्रेन वॉर, हमारा जो है उसके बावजूद भी रुपी हैज एक्चुअली वर्कड वेल एंड इट इज गोइंग टू कम बैक, स्ट्रांगली कम बैक। सो दिस इज बिकॉज क्या इसका एक इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन है रॉबस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटीज, रॉबस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटीज एंड रिजम्पशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो। दोनों बातें हमें ये कॉन्फिडेंस देती हैं कि यस डेफिनेटली रुपी इज गोइंग टू बी कम बैक विद मच मोर स्ट्रॉन्गर पॉइंट। तो इसको कहते हैं डीकपलिंग, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग हो गई। पोर्टफोलियो इन्फ्लोज आए हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि वर्ल्ड में जहां जो जो हो रहा है रुपए के साथ भी वही वही होगा, बाहर जो जो भी हो रहा है वो रुपए के साथ भी होगा। तो यानी पॉइंट ये कि सारे के सारा जो हम कहते हैं कि आवर इकोनॉमी इज लिंक विद द ग्लोबल इकोनॉमी, इसकी यहाँ पे क्या हो गया? डीकपलिंग हो गई एक तरीके से। एक एग्जांपल हुआ डीकपलिंग का। दूसरा डोमेस्टिक यील्ड का, डोमेस्टिक यील्ड जो भी आपके जो टेन्योर खत्म हुए उसके अंदर आप जो है ग्लोबल यील्ड से जब आप कंपेयर करते हो उसमें भी हमें जो है फायदा हुआ है। तो डीकपलिंग उस चीज की भी हो गई। तो डीकपलिंग का मतलब क्या हुआ कि हर चीज से जुड़ी नहीं हुई है। यू कैन नॉट डायरेक्टली ब्लेम द ग्लोबल इवेंट्स व्हाट विल हैपन इन इंडिया आल्सो फॉर द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यू इन्वेस्टमेंट्स वो हमारे बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का हमारा रोल बढ़ रहा है, एमएसएमई सेक्टर जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो एक तरीके का बहुत बड़ा साइन है, इट हैज नॉट जस्ट रिसीडेड इन द बैकग्राउंड। तो पेंडेमिक में और उसके बावजूद भी हमें लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इवन द नेट एनपीए लेवल जो एमएसएमईज के हैं वो नीचे हुए हैं, कंफर्ट जोन के अंदर हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए होते। तो यानी कि इसको भी कहते हैं हम डीकपलिंग, यानी बात को अलग अलग रखना, समझना
कि हर चीज ये नहीं है कि भाई डीकपलिंग का एग्जांपल आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर मैं एक जेनरिक एग्जांपल दूं कि आपने पढ़ाई अच्छी नहीं की इसलिए आपको थप्पड़ लगा। अरे थप्पड़ लगने का कारण कुछ और हो सकता है और पढ़ाई ना होने का कारण कुछ और हो सकता है। इवन फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल इज हेयर, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम हैज एक्ट एज ए मल्टीप्लायर इन रूरल एरियाज। स्वामित्व स्कीम के अंदर वुमेन जो है ओनरशिप मिली है, उनको राइट टू डॉक्यूमेंट मिला है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का, पहले ऐसा था ही नहीं। तो इसीलिए स्मॉलर सिटीज के अंदर ऐसा ज्यादा हुआ है, बेटर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब बड़े हैं। सिमिलरली डिजिटल साखीज, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में डिजिटल सखीज जो है, और नेशनल रूरल लिवलीहुड, स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन में, उससे भी रैपिड फाइनेंशियलाइजेशन वुमेन का हुआ है। सो पॉइंट इज दैट दिस इज अगेन अ डीकपलिंग। सो वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, इकोनॉमी में जो भी हो रहा है, डेफिनेटली हम बात कर चुके हैं पहले भी, हम बहुत सारे एंगल्स हमने बात की थी, लेकिन आज हमने एक नया आयाम दिया कि कैसे इंडिया का रुपी जो है इट विल बाउंस बैक स्ट्रांगली एंड नॉट लिंक्ड विद ओनली द वर्ल्ड इवेंट्स। ओके, सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई पुलिस रिफॉर्म आखिर किया कैसे जाए। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 जो है उसको कैसे हम हटाएं और कैसे हम एक नया लेके आए। पहली बात तो उसके लिए जो है हमने आयरिश मॉडल फॉलो किया है और हमने एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट अथॉरिटी दे दी है पुलिस की, लेकिन सिस्टम चेंज नहीं हुआ है अभी भी 70 सालों 75 सालों के इंडिपेंडेंस के बाद भी। सेकेंडली, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन पीपल रियलाइज नहीं करते हैं कि प्रोग्रेस के साथ साथ जो है सीरियस चैलेंजेस भी हैं इंटरनल सिक्योरिटी को। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एंड वायलेंस, इंडिया का 7% जीडीपी 2020 में इस पे गया है। आप इसे कोट भी कर सकते हैं एसए में और एथिक्स में, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तीसरी बात, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो कहती है कि जो हमारे पार्लियामेंट में हैं जो लोग, वो 24% 2004 में, 30% 2009 में और 43% रिसेंट इलेक्शन में ऐसे लोग आए हैं जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से या क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड से हैं। तो पुलिस जो है क्या करेगी ऐसे ऐसे केसेस में? पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती। पुलिस इज नॉट एबल टू डील विद इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एज इफेक्टिवली एज इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने देखा ये पिछले 30 सालों में माओइज्म के प्रॉब्लम को देखा है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो हमारी है वो इतनी कभी भी स्ट्रांग या पावरफुल या एकदम इतनी ऑब्जेक्टिव नहीं रही है। क्वेश्चन ही आ जाएगा व्हाट शुड बी इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, आपको अपने आप लिखना पड़ेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अगर होने का चाहिए तो स्टेट पुलिस का रिफॉर्मेशन होना चाहिए। लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं है पुलिस में, तो लेकिन मैं आपको कहता हूं आप रोल मॉडल ढूंढिए, आप पुलिस के मॉडल्स लिखिए, आप ऑल वुमेन पुलिस थाने की बात कीजिए। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है डे बाय डे। आर्म्स ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग अब वो तो था ही था, ऊपर से साइबर क्राइम आ गए हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु इज एन आईपीएस ऑफिसर एंड ही इज पोस्टेड इन दिल्ली ओनली, he is taking care of cyber cell, so he was also talking about it कि tough है भाई, we have to change, sophistication आ गया है, expertise आ गई है। Police are not able to deliver partially because of poor infrastructure. Overall, there is a vacancy of more than 5 lakh personnel. Poor housing condition पुलिसमैन की, 24 घंटे का काम करना। तो नेशनल पुलिस कमीशन रिकमेंड किया कि 100% फैमिली अकोमोडेशन दिया जाए नॉन गेजेटेड को, लेकिन दी नहीं गई है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की बात करें, वो भी पूरे नहीं है। उसके बाद हम जो है जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ पुलिस में नहीं होने चाहिए, सीबीआई में होने चाहिए। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को भी चेंज होना चाहिए या उसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। तो आज जो हमने चर्चा की इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस रिफॉर्म्स की, हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, सीबीआई की ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, ईडी की, उसको आप इससे लिंक कीजिए और आपका एक बड़ा आंसर, एक बड़ा रूप बनना शुरू करेगा। डू विजिट प्रीवियस वीडियोस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोस क्लियरली। सिर्फ इसको रटने से या इसको लिखने से कुछ नहीं होने वाला। सिमिलरली जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड पेपर 3 और एसए में भी ये बात कर सकते हैं। जब हमने बात की थी कि यूनिवर्सिटीज में क्या क्या चेंज आने चाहिए, हमने एक दिन बात किया था कि हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंज आने चाहिए, हमने बात की थी आपकी HEI की, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि भाई सारे इंडिया की जो इंस्टीट्यूशन हैं HEIs हैं, लेकिन पहले की आप बात देखिए कि एक्चुअली में क्या प्रोफेसर्स को पूरा मौका मिलता है रिसर्च करने का, क्या उनकी फंडिंग जो है उनके कैलिबर और उनके इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा है, कि यह ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया है। एनईपी 2020 अगर ब्यूरोक्रेटाइजेशन को बढ़ाएगी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन का अर्थ हुआ हर बात के लिए आपको, हर फाइल के लिए आपको 4 बार वेट करना पड़ता है, हर बात के लिए आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी। और इवन जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस है IOE, जिनको 1000 करोड़ की फंडिंग मिली थी, वो भी बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब कागजी की पूर्ति होगी तो हम ऐसे बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं बन सकते, हम ना चाइना बन सकते, ना जापान बन सकते, ना हम यूएस बन सकते। पोटेंशियल एक्सीलेंस का यदि है तो एकेडमिक ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। इनोवेशन, पेटेंटिंग और मुझे कहना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग, उसको हमें बढ़ाना होगा।
हमें जो पोजीशंस खाली पड़ी हैं टीचर्स की, लाखों पोजीशंस जो खाली पड़ी हैं टीचर्स की, उन सबको हमें बंद करना, हमें मतलब उनको फिल करना होगा. एडहॉक टीचर्स, प्रोफेसर्स, एवरीथिंग शुड बी स्ट्रीमलाइंड. देन ओनली लाइसेंस परमिट राज, जो कि एजुकेशन सिस्टम में आज भी दिखाई देता है, वो तब खत्म हो पाएगा. सो ये है असली चेंज. रादर देन क्रिएटिंग न्यू न्यू बॉडीज, रादर देन क्रिएटिंग न्यू न्यू इंस्टीट्यूशंस, this is what this article is actually talking about. In terms of general studies paper 1 history, संगम पीरियड जिसको हम बात करते हैं 3000 बीसीई के आसपास, संगम पीरियड जिसको हम कहते हैं, संगम यानी कि इट वाज एन असेंबली ऑफ पोएट्स. बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी, इट रिफ्लेक्ट्स कल्चर, इट रिफ्लेक्ट्स ईथोस ऑफ साउथ इंडिया. यहाँ बात कर रहे हैं हम, हैंडेक्स मिले हैं हमें. हैंडेक्स यानी पत्थर का टूल होता है, स्क्रैपर यानी जिससे आप स्क्रैप करते हो, क्लीवर यानी जिससे आप चॉपर से आप चॉप करते हो. क्लीवर्स भी एक टाइप का टूल होता है, स्टोन टूल है ये. तो ये 2000 साल पहले के मिले हैं. 12,000 साल पहले के भी कुछ टूल्स मिले हैं और 2000 साल संगमेरा के पीरियड के भी मिले हैं. तो ये क्या दिखाता है कि जो टाइम पीरियड, जैसे इंडस वैली आप बोलते हो 1500 बीसीई में मैच्योर थी, तो ये कहना चाहता है कि संगम पीरियड 3000 साल बीसीई में था. उससे थोड़ा और पीछे ले जाओ भाई उसको, उससे बहुत ले जाओ. तो यानी कि आर्कोलॉजिकल साइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, नाथम मेडू, 1922 में 1922 में डिस्कवर हुई थी. वहां पे संगम पीरियड के आर्टिकल्स मिले हैं. एम्फोरा है, उसके बाद रॉलेट वेयर है. एक दिन हमने पहले भी चर्चा की थी इसकी, लेकिन वी आर नाउ टॉकिंग इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो मीजोलिथिक सिविलाइजेशन भी पीछे हो गई और संगम पीरियड भी पीछे हो गया. इट इज फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वैगई. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि वैगई पीरियड के, वैगई रिवर के इट इज ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर. तो ये चीजें हमें आर्कोलॉजिकल फैक्ट से हमें पता चलता है कि एक्चुअली में कल्चर कैसा था. हैंडमेड टाइल्स भी मिली हैं, स्क्रैपर भी मिले हैं. सो दिस विल बी कोरोबोरेटेड विद लेटर ऑन व्हाट इज रिटन इन द लिटरेचर. तो आपको पता लगता है भाई कि हाँ ऐसा हुआ होगा. सोचिए, समझिए एंड गेट बैक. इन साउथ अफ्रीका, लाइक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इन केस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उर्दू हैज ऑल्सो प्लेड रोल. उर्दू ने भी रोल प्ले किया है. Similarly, like the way different languages have helped in independence of India, Urdu has also helped in Indian independence. भारत के स्ट्रगल में उर्दू का बहुत बड़ा रोल है. Similarly is the role of Urdu in South African struggle against apartheid. apartheid यानी रंग भेद नीति, काले और गोरे का फर्क. भारत की जब हम बात करते हैं तो क्या आपको याद आ रहा है कि उर्दू का क्या रोल रहा होगा हमारे इंडिपेंडेंस में? कोई आपको याद आ रहा है? कोई शेर याद आ रहा है? कोई पोयम याद आ रही है? कोई लेखक याद आ रहा है? याद आ रहा है तो उसको लिखिए, वही आपको काम आएगा. कमिंग बैक अगेन टू जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड ऑल्सो फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पर्सपेक्टिव कि भाई फ्री मॉनेटरी पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी को अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे या उसके लिमिट्स ही नहीं होंगे तो उसके असर क्या होते हैं, उसके क्या लिमिट्स हैं. पहली बात जान लीजिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी 2016 में लागू की गई, सेंट्रल बैंक के ऊपर लागू की गई, कंसल्टेशन किया गया आरबीआई के साथ, और साथ में जो है गवर्नमेंट ने कंसल्ट किया कि भाई इतना अगर जाएगा, 4 ± 2 के अगर आगे जाएगा तो उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी. वंस इन 5 ईयर हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो फिक्स किया जाएगा और टारगेट उसको मिलना ही पड़ेगा. बट सिचुएशन क्या हो गई कि आज की इकोनॉमी में आरबीआई स्ट्रगल कर रहा है अकाउंटेबल होने के लिए. एट द सेम टाइम उसको इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट होना पड़ रहा है सरकार के मैंडेट के लिए. क्यों, आखिर ऐसा क्यों कि सरकार कोई चीज करेगी तो उससे आरबीआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर सरकार राइस का बैन कर रही है तो क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे फर्क पड़ना चाहिए? अगर सरकार एक्सपोर्ट बंद कर रही है, शुगर केन का मान लो आई शुड से रिस्ट्रिक्ट कर रही है, उसके बाद आप जो है वीट और उन सब का आपने बैन कर दिया है, और आपने क्रूड ऑयल की ड्यूटी या फिर रिफाइंड पाम ऑयल की ड्यूटी पे भी आपने जो है चेंजेस कर दिए हैं, या फिर आप कहिए कि सरकार ने जो है सेंटर को डायरेक्ट किया है, सरकार ने मतलब सेंटर डायरेक्ट कर रही है स्टेट्स को कि भाई जो है पल्सेस या ट्रेडिंग जो उनकी होती है उसके लिए भी स्टॉक जो है वो अपलोड करें इन्फॉर्मेशन वीकली बेसिस पे. ये सारे अगर करते हो आप चीजें, तो क्या ये सारे फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस किए, जो भी आप सरकार जो कर रही है, केंद्र सरकार जो कर रही है, क्या इसका मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंडेंस है कि नहीं है? डिपेंडेंस है. दैट इज वाई इट इज द मॉनेटरी पॉलिसी की इंडिपेंडेंस पे जब क्वेश्चन आता है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके अंदर फूड आइटम्स का वेट बहुत ज्यादा है. डेवलप कंट्रीज में मात्र जो है 10 से 25% है, 20 to 25%, लेकिन हमारे केस में तो बहुत ज्यादा है. हमारे केस में 45% से ज्यादा वेटेज है सीपीआई के अंदर फूड और बीवरेजेस का.
अब जैसे ही वो वेटेज ज्यादा हो गया तो जो भी फूड में आगे चेंजेस आएंगे उसके रिफ्लेक्शन आपके इन्फ्लेशन में भी होंगे. दैट इज व्हाट इज बीइंग हैपनिंग in last couple of months, I should say. So that is why the foreign policy, the inflation targeting is not just linked with monetary policy. It must be independence, but then if it is linked with, if it is having, you know, linked with other developments, then it is also going to impact inflation. So सिर्फ यूक्रेन में वॉर हो रहा है वो नहीं है. सप्लाई साइड फैक्टर्स जो मैंने अभी भी बात की, सप्लाई साइड फैक्टर्स फ्रॉम द पेंडेमिक इंक्लूडिंग मॉनसून भी आप ऐड कर दीजिए, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि हमारा इन्फ्लेशन कहां तक जाएगा. इसीलिए आरबीआई की जो डिमांड साइड टूल किट है जो कर रहा है डिमांड साइड की, भाई कम कर देता हूं, रुपये का रेट थोड़ा बढ़ा देता हूं, मतलब रेपो रेट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो जो है इन्फ्लेशन को टारगेट करने में इनफेक्टिव हो गया है, एक तरीके से इनफेक्टिव हो रहा है. सो दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड. एग्जाम में पीटी में तो सिर्फ यू आर गोइंग टू सीपीआई आ जाएगा, सीपीआई के कंपोनेंट्स का टोटल आपसे पूछा जा सकता है, या मॉनेटरी पॉलिसी का क्या स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है या क्या उसका लेवल है, दिस विल बी आस्क्ड. बट देन आई एम टॉकिंग अबाउट इसका रिलेशनशिप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन आंसर questions of growth, inclusive growth and development in a lucid manner. We are taking here as a case study of Karnataka कि कर्नाटक में जो हिजाब के केस हुआ, तो कर्नाटक के जो ऑनरेबल स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है, ही इज सेइंग कि कोई भी एजुकेशन एक्ट, इवन कर्नाटका भी ये नहीं कहता है कि कोई रिलीजियस ड्रेस स्कूल में अलाउड होगी, बट देन व्हाई सडनली देयर आर प्रोटेस्ट. सो ही इज राइट इन सेइंग सो. दूसरा उनका कहना है कि अगर जो किताबें हैं, जो स्कूल का एजुकेशन बुक्स है, वो अगर रियल पिक्चर पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो स्टूडेंट विल लूज इंटरेस्ट इन रीडिंग, बिकॉज दीज डेज स्टूडेंट कैन गूगल एनीथिंग, दे कैन गो फॉर द ट्रस्टेड सोर्सेज ऑल्सो. दैट इज वाई बुक्स मस्ट रिप्रेजेंट द राइट पिक्चर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी ऑल मस्ट एग्री, एंड इन द स्टेट लेवल ऑल्सो दिस हैज टू बी यूज्ड. जीडीपीआर फुल फॉर्म तो बता के दिखाओ. जीडीपीआर किस चीज से जुड़ा है? पीटी के अंदर पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, जीडीपीआर ही वर्ड आया था और उसके बाद पूछा गया था भाई बताओ ये क्या है, कौन से उससे जुड़ा हुआ है. सो पॉइंट ये है, कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया का जो इंटरनेट है, इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है, तो हार्मोनाइजेशन होना चाहिए ना सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर बल्कि इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. ऑनलाइन इकोसिस्टम बनता जा रहा है, तो इंडिया में नॉट फॉलो यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ. इंडिया में नॉट बी एग्रीइंग दैट कि वही लॉ फॉलो करेगा, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज इंडिया इज हैविंग इट्स ओन इशू ऑफ बोट्स एंड ऑल्सो एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी. इंडिया अपनी अकाउंटेबिलिटी को देखेगा, इंडिया अपनी डिजिटल इकोनॉमी की चीजों को देखेगा, इंडिया अपने सिटीजन्स के राइट को देखेगा, इंडिया अपने डेटा प्रोटेक्शन के इश्यूज को देखेगा. इंडिया चाहेगा कि अपने सिटीजन्स के जो भी उनका डेटा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब के सब यहीं प्रिजर्व हों, और वो चाहेगा डेटा फिड्यूसरी. एक वर्ड आप लिख लीजिए, डेटा फिड्यूसरी. ये अकाउंटिंग का वर्ड है. डेटा फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा को सिक्योरिटी के लिए. जो भी डेटा क्रिएट कर रहा है वो वही रिस्पॉन्सिबल होगा, वो संभालेगा उसको. उससे एनफोर्समेंट एजेंसी को भी पता चलेगा कि भाई गड़बड़ी यहाँ से हुई है, तो उसको पकड़ेगा वो. तो यानी कि जो मैंने जीडीपीआर बोला, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोपियन यूनियन का हम एग्जैक्टली फॉलो करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट फुटप्रिंट है डिजिटली. अगर ग्लोबली आप बात करोगे तो इंडिया का लार्जेस्ट फुटप्रिंट है ग्लोबली में, एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज. तो हम क्यों झुकें, हम क्यों उनकी सारी बात आंख मूंद के माने, ऐसा आर्टिकल एंड ऐसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं. तो इंटरनेट रेगुलेशन जो होगा फ्यूचर में, उसमें हार्मोनाइजेशन होना चाहिए डिफरेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. अब फिर चाइना कहाँ जाएगा, चाइना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं. तो दैट इज वाई डेटा मिसयूज रुकेगा डेटा फिड्यूसरीज से, और उसके बाद पिनिटिव एक्शन भी उन पर लिया जाएगा, एल्गोरिदम को भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, पता चलेगा कौन पेड है. आज की डेट में तो क्या हो रहा है, जिसको मन के उसको आपने एम्पलीफाई कर दिया, यूट्यूब के ऊपर आप ढूंढने को छोड़ जाते हो, मिलता कुछ और है. तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत कंट्रोल में आएंगी, मिसयूज कंट्रोल में आएगा. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन जनरल स्टडीज पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स. ये केस स्टडी कहिए या नाम कहिए, आशा किरण जी का मैं नाम ले रहा हूँ. वंडरफुल एंड अमेजिंग इंस्पायरिंग गर्ल who is actually the winner of 800 meters title in the recent concluding youth national games in भोपाल. लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनके घर से, यदि आप इनके घर भी जाना है, बोकारो मतलब गुमला में अगर इनके घर भी जाना है आपको, तो आपको इनके घर से 11 किलोमीटर दूर आपको गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा. 11 किलोमीटर आप जंगल में से, खेतों में से होकर इनसे मिलने जाएंगे. और जब ये
अवार्ड भी जीती थी, तो ये 2 दिन तक अपनी माँ को बता भी नहीं पाई थी अवार्ड जीती थी, क्योंकि वहाँ मोबाइल का एक्सेस ही नहीं है। मोबाइल का एक्सेस नहीं है क्योंकि बिजली ही नहीं है। जब बिजली नहीं होगी तो फोन कैसा होगा। ऐसे लोग इंस्पायरिंग हैं, ऐसे लोग नेशनल सीन के ऊपर आना चाहते हैं, अपनी गरीबी से बचकर देश के लिए आइकन बनना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों को हमारा सलाम। दैट्स व्हाट आई फील। वन मोर नेम आई वांट टू आस्क यू, हैव यू एवर हर्ड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस लेजेंड इलियड किपचोगे? अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ही इज ए कीनियन। आई बीन टू आल्सो कीनिया, लेकिन उस समय तो आई वाज आल्सो नॉट नोइंग कि ये चीजें मुझे पता होंगी कभी। तो इलियड किपचोगे, किपचोग या किपचोगे, ही इज अ वर्ल्ड रेनाउंड मैराथन रनर। He has broken his own records and he is a world class. He's a world class player. World record in progression you can see from 2013 onwards. He is there consistently. He is an Olympic gold medalist also. So what he says, most important thing is my mind. अगर वो फ्रेश है, वो यंग है, तो मैं जीतूंगा ही। आई थिंक ये सेम आपका सिविल सर्विसेज पर भी लागू होता है। लेट्स गो बैक टू अनदर न्यूज़पेपर so that we can take up आइडिया दैट व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो अब हम बात कर रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या काम का आया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वन कॉन्सेप्ट आई वांट टू शेयर विद यू द फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। तो जनरेशन कैपेसिटी फ्लोटिंग सोलर पैनल्स की अच्छी हो सकती है। विशाखापट्टनम के अंदर एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वो मेघादा मेघादरी गिड्डा मेघादरी गिड्डा रिजर्वायर के ऊपर है। दिस इज वन एग्जांपल। ये दिल्ली की बात हो रही है। जो फ्लोटिंग जो पैनल्स होंगे वो कुछ आपके ऐसे दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज व्हाट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। सेकेंडली, हमने पहले भी बात कर लिया डैमसेल फ्लाइज की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि दे एक्ट एज environmental indicator, water quality indicator also, and they also help in reducing the vector borne diseases like malaria, dengue and chikungunya. हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं। These are the pics of these dragonflies. So जब हम बात करते हैं कि G20 की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर इंडिया में होगा भी, तो ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर्स प्रीवियसली। चाहे वैक्सीन डेवलपमेंट हो, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे फिर उसके बाद एनिमल वैक्सीन की बात हो, चाहे फिर उसके बाद इंडिया की डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे फिर इंडिया का डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, डिजिटल अकाउंट्स हो, उसके बाद आधार कार्ड हो, चाहे फिर उसके बाद जो है वनरेबल पॉपुलेशन को फ्री राशन देने की बात हो, पीएम स्वनिधि की बात हो, स्ट्रीट वेंडर्स जो जोड़ा है फॉर्मल क्रेडिट से, पीएम स्वनिधि, या फिर आप जो है बात करो कोविन प्लेटफॉर्म की बात हो, ये सारे पॉइंट्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स बिल गेट्स साहब बोल रहे हैं। तो बिल गेट्स साहब को हम बताना चाहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर सक्सेस. So it is a very very beautiful time for India, that you are also preparing for civil services, and later on these things can be always used in your examination in the answers. पेंशन टेंशन, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम पे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब वो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो है, अभी के सिस्टम में क्या होता है, न्यू न्यू पेंशन में आप अपनी मंथली कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन अमाउंट जो आपको रिसीव होगा रिटायरमेंट पे वो मार्केट रिटर्न पे डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया वो सब न्यू पेंशन स्कीम में चले गए। लेकिन पंजाब उस टाइम कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन में था, राजस्थान ने भी किया, छत्तीसगढ़ ने भी किया, लेकिन अभी जो है वो रिवर्स हो गया है। अब ये स्टेट जो है इन्होंने अनाउंस किया तो हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे। तो ओपोजिशन गवर्नमेंट स्टेट जो है ओपीएस को एक वेपन की तरह देखते हैं, लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 3.1 मिलियन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, दे वर ऑल पार्ट ऑफ एनपीएस, इतने कम, देयरफॉर नो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज स्विंग एन इलेक्शन। लेकिन ओपीएस के कमिटमेंट्स से क्या होगा, आपकी जो जेन्युइन वेलफेयर स्कीम है जिनको हम रेवड़ी की बात कर रहे थे थोड़ा समय पहले, उनको फर्क पड़ेगा। इंडियन आर्म फोर्सेस को चैलेंज हो रहे हैं। डिफेंस थिंक टैंक आईडीएसए का कहना है कि डिफेंस बजट का 49% सैलरीज में गया था, 49%, और सिर्फ 27% आपका आम परचेज में दिया था। तो सोचिए और समझिए, आप सोचिए कि आपका व्यू पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए, अगर आप होते तो आप क्या करते। वन मोर आर्टिकल आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कि भाई शक्ति क्या होती है। शक्ति पुराणास में लिखा है, संस्कृत का एक थॉट है जो आप मेंस में लिख सकते हो, यत्त पिंडे तत्त ब्रह्मंडे, यानी कि ऑल दैट इज इन आउटसाइड यू इज ऑल्सो इनसाइड यू। तो दुर्गा मतलब, दुर्ग मतलब फोर्ट, दुर्गा मतलब जो आपके अंदर होता है।
यानी कि माइक्रो लेवल के ऊपर हमारी बॉडी एक दुर्ग की तरह है, और ये बॉडी कुछ भी कर सकती है, ये शक्ति कुछ भी कर सकती है, एग्जाम निकालना तो बहुत छोटी बात है। तो इंटायर क्रिएशन माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे उस पूरे यूनिवर्स के साथ एक सिंक होके होता है, और वो सक्सेस की तरफ लेके भी जाता है। यही हमारे सोचने की बात है। अगर आप इसको समझेंगे तो नेचुरली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, दिस इज नो डाउट अबाउट इट। कमिंग फर्दर टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, दैट इज द हिंदू न्यूज़पेपर, वी आर टेकिंग अप द हिंदू। हिंदू के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई मैसूरू दशहरा फेस्टिवल। मैसूरू दशहरा फेस्टिवल का मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये विजयनगर एम्पायर के टाइम से मनाया जा रहा है। इसका नाम है नाद हब्बा। नाद हब्बा। It is not only for tourism purposes, but also it is an economic driver. And there are so many direct jobs. More than 80,000 direct jobs are being created by it. Secondly, we are talking about the quest to be best. आप बेस्ट कैसे बन सकते हो अपनी पढ़ाई में? तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं कि परसिवरेंस पे करती है। परसिवरेंस का मतलब है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। परसिवरेंस उसी को कहते हैं। तो 4 क्वालिटीज जो हैं वो बताई गई हैं कि नॉलेज, नॉलेज इज द फर्स्ट। अगर आपको कुछ नहीं आता तो सीखिए। नीरज चोपड़ा सर का एग्जाम्पल दिया कि नीरज चोपड़ा जी जो है दिल्ली से मतलब हरियाणा से वो यूएस तक गए एडवांस नॉलेज गेन करने के लिए, नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया संतूर का, जो शर्मा जी थे, शिव कुमार शर्मा जी। उन्होंने जो है संतूर का कोई भी क्लासिकल पहले मॉडल नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद कर करके निकाला। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि आप बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार नोट खराब हो रहे हैं, लेकिन आप फिर बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि न्यूटन साहब के जो पेपर्स थे, जब उन्होंने थ्योरम्स और आइडियाज बनाए हुए थे, उन पे उनके डॉग ने गलती से कैंडल जला दी थी। कैंडल गिरा दी, कागज जल गए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन, सचिन तेंदुलकर सर, ही इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। पेशेंस और एक्सीलेंस, वही फिर एग्जाम्पल है। पेशेंस तो होती है। अब्राहम मैस्लो साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, स्टेटस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी स्टेजेस हैं। तो सिविल सर्विसेज भी वैसे ही है। एटीट्यूड कल्टीवेट कीजिए और सक्सेस पाइए। नाउ कमिंग टू द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सॉफ्ट पावर किसने कहा? सॉफ्ट पावर 1980s का है। पावर ऑफ अट्रैक्शन थ्रू कल्चर, पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिसीज रादर देन कोएरिशन। तो मिलिट्री हार्ड पावर क्या होगी? हार्ड पावर होगी। वो सॉफ्ट पावर, मिलिट्री पावर तो ऑब्वियसली हार्ड पावर है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, नीरज चोपड़ा ने जैसा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने, वो हमारे लिए एक जियो पॉलिटिकल एक्टर बनने का काम भी कर सकता है, जैसे चाइना के साथ हुआ है। चाइना नॉट इवन बीइंग डेमोक्रेसी, उनके जब भी ग्रेट एथलीट्स ने परफॉर्म किया है, ग्रेट स्पोर्ट्समैन ने परफॉर्म किया है, तो वर्ल्ड ने उसको पॉजिटिव एंगल से देखा है। इवन अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारी अच्छे टाइज, एमओयूज उन्होंने किए हैं, ताकि चाइना के एथलीट्स अफ्रीकन एथलीट्स को ट्रेन कर सकें। इंडिया ने भी टॉप चलाया था, लेकिन वो टॉप्स के अंदर बात करनी पड़ेगी। जहां इंडिया 3 पैसा पर डे पर कैपिटा स्पोर्ट्स में खर्च करता है, चाइना 6 रुपया पर डे पर कैपिटा पे करता है। भाई साहब, क्या भाई साहब के साथ तो मुझे बहन जी भी बोल देना चाहिए। यानी कि 3 पैसे पर डे पर कैपिटा, और दूसरा चाइना का है 6 रुपया पर डे पर कैपिटा। भाई कहां पंगा लेंगे? फर्क देखिए आप कितना है। तो एम होना चाहिए इंडियन प्लेयर्स का बेस्ट बनने के लिए। अभी राइट टाइम आ रहा है, पेरिस ओलंपिक्स भी ऑल्सो आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पीपीपी मॉडल भी क्रिएट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट भी क्रिएट करना चाहिए। खेलो इंडिया शायद इसी दिशा में एक कदम है, आप सोचिए। इवन पंचायती राज के गेम्स भी इसी दिशा में एक कदम है, आप सोचिए। और सिर्फ गेम को गेम मत समझिए, उसको एक तरीके का इंटीग्रल सोसाइटी का पार्ट समझिए। दूसरा आर्टिकल अगर मैं बात करूं, दूसरा आर्टिकल मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जयशंकर सर है, वो बात करते हैं मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी की। मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी यानी कि ओनली प्रेसिडेंट रिसेंट टाइम में उन्हीं का है, जो उन्होंने इतने सारी जगह से उन्होंने जो है 11 डेज का एक पूरा ग्रेट वर्ल्ड वाइड टूर किया 2019 के बाद से, और उन्होंने जगह जगह सबसे बात की। थिंक टैंक से बात की, फॉरेन मिनिस्टर से बात की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की, और बाकी चीज़ों से भी बात की। तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि जो देयर मस्ट बी ओवरहॉलिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, उसके स्टेक्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के साथ साथ और डेवलप कंट्री के साथ साथ भी। तो एक वाटरशेड मूवमेंट है। क्या थीम थी? थीम पे आप ऐसे लिखिए, वाटरशेड मूवमेंट क्या था? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। क्या 5 इंटरलॉकिंग चैलेंजेस आप बता दोगे अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है? 5 इंटरलॉकिंग चैलेंजेस बताइए वर्ल्ड के जो हैं, और जिसमें इंडिया भी जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर एक है इंटरलॉकिंग चैलेंज, पैलेस्टीन प्रॉब्लम दूसरा इंटरलॉकिंग चैलेंज है। ऐसे तो मैं सारे ही बता दूंगा, आप क्या बताओगे?
तो आप बताइए। तो यूएन की जो है फॉल्ट लाइंस हैं, फॉल्ट लाइंस दूर होनी चाहिए। मल्टीलेटरलिज्म के मैकेनिज्म ऐसे होने चाहिए कि वॉर को प्रिवेंट किया जा सके। मल्टीलेटरलिज्म मैकेनिज्म ऐसे होने चाहिए जिसमें चाइना जो है वो टेररिस्ट को ना बचा पाए, वो उसको वीटो ना कर पाए। दूसरा, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन और ग्लोबली भी चाइना का जो स्टाइल है उसको रोका जा सके। यूएन स्टाइल मल्टीलेटरलिज्म बढ़ना चाहिए, चाइना का रुक जाना चाहिए। चाइना का कंट्रोल नहीं होना चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बैचलेट ने कहा था कि भाई उइगुर्स और इनके साथ आपको ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसको रोके, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। तो इसीलिए G4, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान, बहुत सिग्निफिकेंस है उसका। L69 ग्रुप, मैंने एक दिन पहले भी बात की थी। L69 ग्रुप को देखिए, उसकी मेंबरशिप को देखिए, उसमें कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा था, क्वाड, इब्सा, ब्रिक्स, CELAC, इंडिया कैरिकॉम, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फ्रांस यूएई, इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया। आज मैं दूसरी बार इन सब चीजों की बात कर रहा हूं। आपको इसके नोट्स बनाकर इसको समझना पड़ेगा और इस पे दो दो लाइनें आपको करनी पड़ेंगी, तो आपको बेनिफिट भी होगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स एंड बोथ द मेंस एग्जाम। Similarly, let's move forward. After Hindu, let's take an important article, जैसा मैंने अभी भी बात कहा, from the Economic Times. We are talking about कैसे ग्लोबल टेरर की प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। ओल्डर चैलेंज तो है ही, नए हो रहे हैं। तो टेररिज्म इज शेप शिफ्टिंग, दैट मीन्स वो ग्लोबल प्लेग है टेररिज्म। इंटरनेशनल कम्युनिटी को लर्न करना पड़ेगा रशियन इन्वेजन के यूक्रेन से कि इटरनल विजिलेंस चाहिए फॉर ओपन सोसाइटीज एंड डेमोक्रेसीज। अगर आप कुछ भी छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेज आर इमीडिएट एंड ओवर टाइम दे विल बी एक्यूटली फेल्ट बाई ऑल द कंट्रीज एंड नॉट जस्ट वन कंट्री। China is, that is why we must think about China from that angle also, from that perspective also. This is one very important article over here. बाकी हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। सिमिलरली मैं आपसे बात करता हूं नासा का डार्ट मिशन। डार्ट यानी मिशन का गोल है कि वो जो है वर्ल्ड को कैसे बचाएगा अगर कोई एस्टेरॉयड आके धरती पर टकराने वाला होगा। तो नासा इज अबाउट टू क्रैश इनटू ए मिनी एस्टेरॉयड, जो कि लार्ज एस्टेरॉयड के चारों तरफ घूम रहा है। ये मिनी एस्टेरॉयड को टकराएगा, ये मैंने आप फोटोग्राफ में आपको दिखाया है, और उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज करने की कोशिश करेगा। ये डार्ट है। नवंबर 24 2021 को इसको लॉन्च किया गया था वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया, और अब वो उसको टकराएगा और उसके ट्रेजेक्ट्री को चेंज करेगा। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और जो फुल स्केल प्लानिटरी डिफेंस एक्सपेरिमेंट है, ये फुल स्केल प्लानिटरी डिफेंस एक्सपेरिमेंट कि अगर मान लो कभी धरती के साथ ऐसा कुछ हो तो हम कैसे कर पाएंगे। स्पीड देखिए आप, 22,500 किलोमीटर पर आवर। द वेट इज 570 kg। इसके ऊपर कैमरा भी है, इट विल टेक इमेजेस ऑल्सो। तो अनलेस द डार्ट मिसेज, NASA put the odds of that happening only less than 10%. It will be the end of road for DART. एस्टेरॉयड का द एस्टेरॉयड टारगेट कौन है? डीमॉर्फोस। और धरती से दूर कितना है? 7 मिलियन माइल्स। Okay, so this is what I wanted you to know so that you can understand and you can enjoy. Already we have spoken about UN, United Nations General Assembly. We have been speaking about that how the turbulent world order can be streamlined further for India and for the rest of the world. Similarly, अगर हम बात करें कि मल्टीलेटरिज्म पे हम थोड़ी सी और बात करें, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हमने जो पहले बात की उसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं कि इंडिया इज मेकिंग श्योर दैट मल्टीलेटरिज्म मस्ट बी रिपेयर्ड फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात कैसे करेगा? डिजिटल ट्रांजिशन, ग्लोबल इकोनॉमी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूचर ग्लोबल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टैक्सेस, प्रॉफिट, वेजेस होंगे, वो सारे के सारे डिजिटल तरीके से होंगे। तो वो जीरो सम गेम नहीं हो सकता, उसको होना भी नहीं चाहिए। नेचुरली कुछ कंट्रीज जो है टेक्नोलॉजिकल एज लेने की कोशिश करेंगी, जैसे यूएस सीनेटर्स कह रहे थे कि एप्पल को या फिर गूगल को कैसे रोका जाए। लेकिन क्या आप डाटा का फ्लो को रोक पाएंगे? टेक्नोलॉजी और कैपिटल को आप रोक पाएंगे? तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन ढूंढे हैं, कोशिश कर रही है कि सॉल्यूशन है कि भाई कैसे आप लॉन्ग टर्म में इन चीजों को हैंडल करोगे। अब एक है आपका स्टेट डोमिनेटेड मॉडल, वो है आपका चाइना का। एक है आपका प्राइवेट सेक्टर लैंड मॉडल, वो आपका यूएस का है। तो हमारा तो भाई बीच का है। हमारा जो है डोमेस्टिक डिजिटल इनोवेशन और प्रॉफिट मेकिंग जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक गुड्स के अंदर है वो, यानी पब्लिक गुड, यानी कि डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म को हम छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे आधार प्लेटफॉर्म
आधार प्लेटफॉर्म पब्लिकली रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज, और वो इंडिविजुअल्स की हेल्प भी करेगा, सोसाइटी की हेल्प भी करेगा। आप देखिए हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंट ई कॉमर्स की बात करने लगे हैं हम, यूनिवर्सल इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म है, हमारे ट्रांसफरेबल डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं। सो दैट इज वाई प्रॉफिट, प्राइवेट प्रॉफिट और इनोवेशन भी इंक्रीजिंग एक्सेस के साथ साथ होता जाएगा और उसको भी मदद मिलेगी। सेकेंडली, क्लाइमेट क्राइसिस की बात अगर हम करते हैं तो क्लाइमेट के अंदर भी वेस्ट फाइनेंस जो है वो बड़ा लॉपसाइडेड है, हम लूजर हो जाएंगे हिस्ट्री में। चाइन क्लाइमेट नेगोशिएशंस जो है वो अंडर परफॉर्म नहीं होने चाहिए। इसीलिए आंसर आता है कि ग्लोबल ग्रीन ट्रांजिशन होना चाहिए, यानी जैसे मैंने पहले भी बात की थी, ड्राउट्स, फ्लड, एनर्जी इनसिक्योरिटी, इन सबसे लड़ने के लिए हमें सिस्टम्स देखने पड़ेंगे पीटी के अंदर। दैट इज वाई क्वेश्चन कम्स इन एनवायरमेंट। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनको भी उस दिशा के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। They must be operating in such a structural manner that they are actually helping in the prevention of future disasters. So green lending focused multilateral institution फ्यूचर में हो सकते हैं। तो आपकी नज़र में कुछ ऐसा आता है? आप सोचिए, इंडिया की क्या आपकी नज़र में कुछ ऐसा है जो कर सकते हैं? तो ज़रूर सोचिए और उनके पॉइंट्स भी बनाइए। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, या फिर आप सोचिए जो लैंडिंग है ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए, उसमें इंडिया को या फिर जो रियली में होना चाहिए वो कितनी आती है। So with these words, I am winding up for today. Please do make your own notes, start segregating it smartly, and if you want to join us for any kind of courses, do get back. Thank you very much.